So, welcome to another lecture of respiration and circulation. Today, we are going to discuss about human circulatory system, and we are going to start with composition of the blood. Okay. Uh, so, blood is a main circulating fluid in the human body. So, आपके human body में सबसे important circulatory fluid क्या है? Blood. और study of blood is known as hematology. Okay, study of blood को क्या बोलेंगे? Hematology. So hematology is known as, that is nothing but a study of blood. So blood क्या है? Blood is a type of connective tissue. ये क्या connective tissue का type है? It is a type of fluid connective tissue, and blood is going to originate from mesoderm. मतलब human body has three germinal layer. कौन कौन से तीन germinal layer है? Ectoderm, endoderm and mesoderm. So blood as well as heart is going to originate from the mesoderm. मतलब ये mesoderm से develop होता है. So blood कैसा है? Blood is alkaline in nature. Alkaline मतलब जिसका pH is more than 7. So pH कितना है? 7.4. Blood is salty to taste. It is viscous. Viscous मतलब क्या है? It is heavier than water. Water से थोड़ा heavy है, ज़्यादा thick है. So therefore it is known as viscous. Right? Normally the adult has approximately 5 liter of the blood. तो अगर adult के बारे में बात करेंगे तो it has normally 5 liter of the blood, और ये 5 liter blood is equivalent to 8% of the total body weight. मतलब अगर मेरा body weight है 50 kg, so 8% of the 50 kg become 4 kg. So blood का weight कितना होगा? 4 kg, right? So what we have to remember in case of the blood? Blood is main circulating fluid. Study of blood को क्या बोलेंगे? Hematology, right? Blood is going to derive from mesoderm. Okay. What type of connective tissue blood? It is a type of fluid connective tissue. It is a type of fluid connective tissue. So what is the color of the blood? Blood का color क्या है? Red है. कैसा है blood? Slightly alkaline. Slightly alkaline मतलब जिसका pH है 7 से ज्यादा. So pH कितना है blood का? 7.4. Blood is viscous. Viscous मतलब क्या है? Thicker than the water, right? कितना blood रहता है human body में? 5 liter, और उसका जो 5 liter is equivalent to 8% of the total body weight. अभी अगर आपने डायग्राम में देखा यहाँ पे, राइट? सो ब्लड हैज टू पार्ट. ब्लड का दो पार्ट है. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड. अनदर पार्ट इज कॉल्ड एज फॉर्म एलिमेंट. फॉर्म एलिमेंट इज नथिंग बट ब्लड सेल्स. ओके, तो व्हेनेवर सपोज अगर मैंने 100 ml ब्लड लिया एक बीकर में और या टेस्ट ट्यूब में, और उसको मैंने सेटल करने के लिए रखा, तो अपर लेयर यू गेट अ लिक्विड पोर्शन. ऊपर का लेयर है वो लिक्विड है, उसको बोलने का प्लाज्मा. अगर आपने प्लाज्मा का कलर देखा तो कलर देखो, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड, पेल येलो कलर. क्या कलर है उसका? पेल येलो कलर है. प्लाज्मा ब्लड का ही कंपोनेंट है. सो प्लाज्मा इज अगेन अल्कलाइन, राइट? वो भी कैसा है? अल्कलाइन मतलब जिसका pH इज मोर देन 7. सो इट इज स्लाइटली अल्कलाइन. इट इज विस्कस फ्लूइड. ओके, अभी प्लाज्मा के अंदर क्या क्या रहता है देखो. यू कैन जस्ट रिफर टू द डायग्राम. प्लाज्मा के अंदर है 7% प्रोटीन. ओके, अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर. ओके, 90% वाटर है, 7 to 8% प्रोटीन रहेंगे, एंड अदर रिमेनिंग सब्सटेंसेस आर अप्रोक्सीमेटली 2 to 3%. ओके, तो अगर आपने देखा प्रोटीन, प्रोटीन में क्या क्या है? द प्रोटीन के अंदर आएगा अल्ब्यूमिन, that is going to contribute approximately 58%. Okay, globulin, albumin is transporter protein. मतलब जब ये हॉर्मोन्स रिलीज होंगे ब्लड में, तो ये अल्ब्यूमिन क्या करेगा? उसको ट्रांसपोर्ट करेगा. सो अल्ब्यूमिन इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ग्लोबुलिन इज नथिंग बट एंटीबॉडीज. जब भी आपको इन्फेक्शन होगा, योर बॉडी इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम डिफेंसिव केमिकल. तो जो कुछ डिफेंसिव केमिकल आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलने का दैट इज एंटीबॉडीज. तो ये एंटीबॉडीज मतलब क्या है? केमिकली ये है ग्लोबुलिन.
ग्लोबुलिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. सो एंटीबॉडीज को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन. ओके. देन देयर इज फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेन है. दिस फाइब्रिनोजेन is involved in blood clotting. Other than these three, there can be prothrombin, there can be properdin. So all these proteins are present in case of plasma. तो प्लाज्मा किससे किससे बना है आपको याद रखना है. प्लाज्मा कंटेन 90% वाटर एज पर योर टेक्स्ट बुक, 7 to 8% प्रोटीन है और रिमेनिंग 3% अदर सब्सटेंसेस. तो ये 3% अदर सब्सटेंसेस में क्या आएंगे. देयर कैन बी इनऑर्गेनिक सॉल्ट, that is in the form of ions. Okay, तो ये inorganic salt में क्या होगा. there can be sodium, potassium, magnesium, calcium, manganese, then chloride, bicarbonate, phosphate, etc. ये सब inorganic salt रहेंगे. then other substances में क्या आएंगे. nutrient. okay, दिख रहा है आपको यहाँ पे nutrients है. अभी nutrient के अंदर क्या क्या आता है. the nutrient के अंदर आएगा glucose, amino acid, fatty acid, triglyceride. all these will be present in your plasma. then और क्या रहेगा. waste product है. यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन. all these are waste product that is present. then there are regulatory substance. अभी regulatory substance में क्या आएंगे. hormones, then enzymes, vitamins. all these are included in regulatory substances. and then आएगा gases. gases is oxygen and carbon dioxide. so this is a composition of plasma. तो अगर क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द शॉर्ट नोट, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, तो क्या लिखोगे. प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड. इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड. कैसा है. स्लाइटली अल्कलाइन. विस्कस फ्लूइड है. प्लाज्मा किससे किससे बना है. 90% वाटर, 7 to 8% प्रोटीन एंड रिमेनिंग 3% अदर सब्सटेंसेस. वो 3% अदर सब्सटेंसेस में भी क्या है. ऑर्गेनिक सॉल्ट है, आयंस है. कितना है. 1%. और बाकी की जो है 2 to 3%. okay, so this is all about the composition of plasma only. okay, so composition of plasma देखो as per your textbook. so as per your textbook composition of plasma के अंदर क्या है. 90% water, right. प्रोटीन है 7 to 8%, बराबर. उसके अंदर है अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपर्डिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन. prothrombin, fibrinogen, it is involved in clotting mechanism. that also we are going to discuss. और क्या है. inorganic salt है. कितना परसेंट है. 1% है. and there are other substances 1 to 2%. other substance में आएगा food, waste, regulatory substance, anticoagulant. anticoagulant मतलब blood clotting को जो prevent करेगा. anti is against the clotting, बराबर कि नहीं. तो heparin is an example of anticoagulant. then cholesterol, dissolved gases, all these will be present in other substances. तो ये हुआ आपका composition of plasma. this is all about composition of plasma. coming to the next part. okay, अभी क्या है बच्चे. form element. so blood cells is going to form 45% of the total blood. 55% कौन form करेगा. plasma. तो बचा क्या. 45%. 45% कौन फॉर्म करेगा. इट इज गोइंग टू फॉर्म बाय द ब्लड सेल्स. अभी आपके बॉडी में कितने टाइप के सेल्स हैं. 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर. व्हाट आर दे. रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स. नाम से ही पता चलता है रेड इन कलर. ओके. देन व्हाइट ब्लड सेल्स, कलरलेस. यस और नो. एंड देयर आर प्लेटलेट्स. सो रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट. एरिथ्रोसाइट मतलब क्या है. एरिथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल्स. व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट. ल्यूको मतलब व्हाइट. ओके. साइट मतलब सेल्स. एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट. थ्रोम्बो मतलब क्लॉट, बिकॉज दे आर इन्वॉल्वड इन क्लॉटिंग. और ये व्हाइट ब्लड सेल्स के फिर से देखो बहुत सारे टाइप्स है. 5 टाइप्स आर देयर. तो ये 5 टाइप्स भी हम लोग डिटेल में करेंगे. देयर आर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. ये क्या है. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. ओके. तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे आरबीसी से. ओके. सो आरबीसी का शेप देखो. शेप कैसा है. सर्कुलर है, बाय कॉन्केव. बाय कॉन्केव मतलब क्या. दोनों जगह पे क्या है. अगर आपने ऑब्जर्व किया दोनों जगह पे डिप्रेशन है. देखो दिस इज वन सरफेस. So see upper surface. Can you see it has got a concavity.
This is lower surface, so it has got concavity. So there is concavity on upper surface. मतलब ऊपर की तरफ भी क्या है, ऐसे डिप्रेशन रहेगा और नीचे की तरफ भी डिप्रेशन रहेगा, तो उसको बोलते हैं बाय कॉन्केव. बाय कॉन्केव, बाय मतलब दो, कॉन्केव मतलब क्या है, दैट इज जो पार्ट अंदर गया है, दैट इज कॉन्केव, राइट. सो बाय कॉन्केव मतलब क्या है, कॉन्केव ऑन बोथ द साइड, दैट इज अ फर्स्ट. ओके. साइज देखो क्या है, डायमीटर है आरबीसी का इज अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर. कितना डायमीटर है, 7 माइक्रोमीटर. और थिकनेस है 2.5 माइक्रोमीटर. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज. ओके. डायमीटर कितना है, 7 माइक्रोमीटर है, थिकनेस है 2.5 माइक्रोमीटर. ओके. अभी नंबर ऑफ आरबीसी आर डिफरेंट इन मेल एंड डिफरेंट इन फीमेल. मेल में आरबीसी का नंबर हमेशा ज्यादा रहेगा, बिकॉज देर आर सर्टन साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट. उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है. अभी मेल के पास कितना आरबीसी रहेगा, अगर मैंने 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड लिया, ये 1 मिलीमीटर क्यूब में देयर कैन बी 5 to 6 मिलियंस ऑफ आरबीसी. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू द एवरेज नंबर 5 to 6 मिलियन. हमेशा याद रखो आरबीसीज आर इन मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर. सो नंबर इन केस ऑफ द मेल देखो कितना है, अगर approximate value is 5 to 6, that is 5.1 to 5.8 millions per cubic millimeter. फीमेल में कितना है, 4.3 to 5.2 millions per cubic millimeter. Okay. अभी why male has more values of RBC than the female? क्या रीजन रहेगा, एक तो फर्स्ट रीजन, मेल हैज मोर नंबर ऑफ मसल्स. आरबीसी का फंक्शन क्या है, कैरी द ऑक्सीजन. ज्यादा मसल है मतलब ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा मतलब क्या है, ज्यादा हीमोग्लोबिन लगेगा. बिकॉज आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, द आरबीसी के अंदर व्हाट इज प्रेजेंट, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है. सो ज्यादा आरबीसी मतलब ज्यादा हीमोग्लोबिन, ज्यादा हीमोग्लोबिन मतलब ज्यादा ऑक्सीजन कैरी होगा, है कि नहीं. सो दैट इज द फर्स्ट रीजन the male has more number of RBC. Okay, why? Because they have more number of muscles. So in order to provide oxygen to the more of number of muscle, there has to be more number of RBC. More number of RBC, that means more number of hemoglobin. ज्यादा हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं. और मेल के पास देयर इज एन हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन. ये टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोएसिस. एरिथ्रोपोएसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. मतलब टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, किसके लिए हेल्प करेगा, या फिर एनहांस करता है, क्या एनहांस करेगा, एरिथ्रोपोएसिस. एरिथ्रोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. और एक आपने ऑब्जर्व किया है तो ये आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो उसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड. आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस. Human RBC or mammalian RBC, they lack the nucleus. क्यों न्यूक्लियस एब्सेंट है, so that hemoglobin अंदर ज्यादा से ज्यादा रहेगा, so that it can accommodate more number of hemoglobin molecule. बराबर कि नहीं. So that's why RBC do not have nucleus in mature state. लेकिन जब भी वो फॉर्म होगा तभी न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम दैट न्यूक्लियस इज लॉस्ट. ओके. तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, लाइफ स्पैन. देखो कितना लाइफ स्पैन है आरबीसी का, 120 डेज. मतलब क्या होगा, आफ्टर 120 डेज दैट आरबीसी गेट डिस्ट्रॉयड. किधर डिस्ट्रॉय होगा, किधर जाके मरेगा, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इन लीवर एंड स्प्लीन. ओके, लीवर तो आपको पता है, स्प्लीन इज ऑर्गन दैट इज लोकेटेड नियर पैनक्रियास. पैनक्रियास के नजदीक एक ऑर्गन है, उसको बोलते हैं स्प्लीन. ओके, स्प्लीन को बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन. अब ये स्प्लीन क्या करेगा, स्प्लीन इज एसोसिएटेड विद ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी. ओके, तो स्प्लीन एंड लीवर इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी. ग्रेवयार्ड समझते हैं ना, जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं, बराबर. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड और इट इज ऑल्सो नोन एज डिमोलिशन साइट, जहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं. ओके, तो आपके लीवर में देखो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. लीवर में आरबीसी गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर 120 डेज. आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट. बाइल पिगमेंट फॉर्म होता है हीमोग्लोबिन से. कौन सा बाइल पिगमेंट,
bilirubin and biliverdin as well as urochrome. ओके तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन इंटेस्टाइन में आएगा वाया बाइल जूस. ओके एंड इट विल बी थ्रोन आउट. ओके आपके फीकस से, आपके अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट से ये बाहर जाएगा. बराबर कि नहीं. आपका फीकस का कलर क्या है? येलो कलर है. बराबर कि नहीं. आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका कलर क्या है? येलो कलर है. ये येलो कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. हाँ तो देखो 120 डेज के बाद आरबीसी विल बी डिस्ट्रॉयड इन लीवर. आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा. किसमें ब्रेकडाउन होगा? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. बिलीरुबिन बिलीवर्डिन क्या कहाँ पे जाएंगे? दे आर गोइंग टू फॉर्म बाइल पिगमेंट. ये बाइल के साथ किधर आएंगे? इंटेस्टाइन में आएंगे एंड इंटेस्टाइन से दे विल बी थ्रोन आउट अलोंग विद अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट. तो आपके फीकस का जो येलो कलर है, येलो कलर किसके वजह से है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. आपका यूरिन का जो येलो कलर है वो किसके वजह से है? यूरोक्रोम. तो यूरोक्रोम, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन किससे फॉर्म होता है? ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन. समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस. ओके क्या आपको याद है एरिथ्रोपोएटिन किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है. ये हम लोगों ने एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन में किया था. वो हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोएटिन. अब ये हार्मोन क्या करता है? दैट हार्मोन is going to bring about erythropoiesis. What is erythropoiesis? Erythropoiesis मतलब है formation of RBC. Okay, so erythropoietin is released by juxtaglomerular apparatus of kidney. किडनी से एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा और ये क्या करेगा? एरिथ्रोपोएसिस करेगा. एरिथ्रोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. ये सब टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है. एरिथ्रोपोएसिस क्या है एंड देयर आर फ्यू मोर टर्मिनोलॉजी. ओके तो एरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन फीटस में किधर होगा? लीवर एंड स्प्लीन. फीटस समझते हैं ना. ओके आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का क्या होगा? फीटस. ये फीटस के अंदर क्या है? आरबीसी फॉर्मेशन किधर होगा? लीवर एंड स्प्लीन. लेकिन अडल्ट में राइट नाउ इन अडल्ट मतलब आपके बॉडी में किधर हो रहा है? रेड बोन मैरो. कैन यू रिमेंबर रेड बोन मैरो? जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन उसके एंड में, ओके बोन के अंदर, लॉन्ग बोन के अंदर देयर इज रेड बोन मैरो. अभी रेड बोन मैरो क्या करेगा? आरबीसी फॉर्मेशन करेगा, डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन करेगा, प्लेटलेट फॉर्मेशन करेगा. ऑलवेज रिमेंबर रेड बोन मैरो इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. रेड बोन मैरो किधर है? एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स. एपिफाइसिस बोलते हैं, याद है? ओके आपका बोन है. कैन यू रिमेंबर बोन? एक मिनट में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ. So can you remember this is a bone, right? आपको याद आता रहेगा ये बोन. ये दिख रहा है आपको? बोन है. ये बोन का ये रीजन दिख रहा है? ये रीजन को बोलते हैं एपिफाइसिस. और ये एपिफाइसिस के अंदर क्या है? रेड बोन मैरो है. ये रेड बोन मैरो है. सो और एपिफाइसिस का पार्ट भी कैसे रहता है? पोरस रहता है ना, सो दैट आरबीसी कैन कम आउट. तो ये रेड बोन मैरो है दैट इज कंसर्न विद एरिथ्रोपोएसिस इन केस ऑफ अडल्ट. ओके और आरबीसी तो आपको पता है किधर डिस्ट्रॉय होता है? लीवर एंड स्प्लीन. उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड. ग्रेवयार्ड मतलब क्या है? जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं, राइट, या फिर जलाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड. ओके सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस. फीटस में किधर होगा? लीवर एंड स्प्लीन. ये आपको याद रखना है. अडल्ट में किधर होगा? रेड बोन मैरो. एंड कहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा? लीवर एंड स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होगा. ओके कभी कभी क्या होता है? आपके बॉडी में आरबीसी का नंबर बढ़ेगा. ओके सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इन योर बॉडी, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया. आपको स्पेलिंग भी याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन भी याद रखना है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया. ओके अगर आपने कोई भी हायर अल्टीट्यूड पे गए, मतलब क्या हिमालय में गया है या फिर हिमाचल प्रदेश में गए, बराबर, तो जो लोग हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं, ओके सो दैट पीपल दे शो हाई नंबर ऑफ आरबीसी. बिकॉज क्या होता है? एज यू गो अप, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है कि नहीं?
तो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा तो आपका आरबीसी बढ़ेगा। क्यों आरबीसी बढ़ेगा? ज्यादा आरबीसी मतलब मोर आरबीसी कैन बाइंड टू द मोर ऑक्सीजन, बराबर कि नहीं? सो द पीपल हु आर लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड, मतलब जो पर्वतों पे रहते हैं, बराबर कि नहीं, तो उनके पास ज्यादा आरबीसी रहेगा। क्यों ज्यादा आरबीसी रहेगा? बिकॉज दे नीड टू हैव मोर ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल वहां पे वैसे भी कम होता है, ज्यादा आरबीसी रहेगा तो बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलेगा उसको? पॉलीसाइथेमिया। अगर यही आरबीसी अगर डिक्रीज हुआ उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया। अभी ये डिक्रीज कभी होगा? ये डिक्रीज होगा सर्टन डिसीजेज में। मतलब देखो, अगर आपको मलेरिया हुआ तो ये मलेरिया का जो पैरासाइट है वो किधर जाता है? आपके आरबीसी में जाके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब आपका आरबीसी का नंबर कम होगा कि नहीं? So that condition is called as erythrocytopenia. So there are various conditions जहाँ पे RBC का number will decrease, right? कि नहीं? So decrease in number of RBC is called as erythrocytopenia. So what is the function of RBC? It is oxygen carrier. और ये क्या करेगा? pH भी maintain करेगा। और क्या करेगा? It is also going to maintain the viscosity. देखो last function क्या है? It is oxygen carrier. It is going to maintain the pH and it is also going to maintain the viscosity of the blood. मतलब ब्लड का जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प करेंगे? आरबीसीज आर गोइंग टू हेल्प। सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? दैट इज हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। सो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, बराबर। अगर सपोज मैंने एक आरबीसी लिया, एक आरबीसी के अंदर देर आर 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मतलब नंबर तो देखो, एक आरबीसी के अंदर 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रेजेंट। और ये आरबीसी को अगर आपने देखा तो आरबीसी किससे बना है? आरबीसी इज इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। कौन सा 4 पॉलीपेप्टाइड? देर आर 2 अल्फा चेन, दिख रहा है आपको डायग्राम में? देखो डायग्राम में, जहां पे 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड है और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड है, तो आरबीसी इज प्रेजेंट और आरबीसी शो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। हर एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है? 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बराबर। तो मेल में कितना हीमोग्लोबिन है? ऑब्वियसली मेल हैज मोर, 14 to 17 ग्राम परसेंट। ग्राम परसेंट मतलब क्या? पर 100 ml। मतलब अगर मैंने 100 ml ब्लड लिया तो उसके अंदर कितना होना चाहिए? 14 to 17 ग्राम। ऑब्वियसली मेल इज हैविंग मोर वैल्यूज देन द फीमेल। फीमेल हैज 13 to 15 ग्राम परसेंट। सो अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया, मोस्टली गर्ल्स में हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहता है, ओके। सो अगर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लो हीमोग्लोबिन, आपके बॉडी में अगर लो हीमोग्लोबिन है उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलेगा? देखो टर्मिनोलॉजी, एनीमिया इज लेस हीमोग्लोबिन। तो अगर आपको एनीमिया है, लो हीमोग्लोबिन है, तो आपको डॉक्टर देंगे बी कॉम्प्लेक्स या फिर आयरन कंटेनिंग टैबलेट, या फिर क्या देते हैं? डॉक्टर आपको बोलेंगे कंज्यूम द फूड विच इज रिच इन आयरन। मतलब ऐसा खाना खाओ जिसके अंदर बहुत आयरन है। एप्पल खाओ, पालक खाओ, बराबर नहीं, लीफी वेजिटेबल खाओ जिसके अंदर क्या है? मोर आयरन, तो आपका बॉडी का आयरन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, बराबर नहीं। सो एनीमिया क्या है? एनीमिया इज लेस हीमोग्लोबिन, दैट इज अ कंडीशन वेयर द हीमोग्लोबिन लेवल इज गोइंग टू डिक्रीज। मतलब अगर मुझे मलेरिया हुआ तो ये मलेरियल पैरासाइट का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मेरे आरबीसी में जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, बराबर की नहीं। तो अगर आपने देखा आरबीसी के पास क्या है? ग्लोब्यूल चेन है, बराबर की नहीं। इट इज हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ द आरबीसी। जब भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? व्हाट इज रिलीज? नाउ यू कैन सी दिस इज कॉल्ड एज हीम ग्रुप। दिख रहा है हीम ग्रुप? देखो डायग्राम में, अल्फा चेन के अंदर हीम ग्रुप है, दिख रहा है? बीटा चेन के अंदर भी हीम ग्रुप है। हीम ग्रुप के सेंटर में देखो आयन है, देखो सेंटर में आयन है। एंड कैन यू सी देयर आर रिंग्स, 4 रिंग्स आर देयर। उसको बोलते हैं पॉरफायरिंग रिंग। क्या बोलते हैं उसको? पॉरफायरिंग रिंग।
तो जब भी आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, हीमोलाइसिस, ग्लोबिन है मतलब पॉलीपेप्टाइड है, वो क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड रिसाइकिल होगा। तो हीम का क्या होगा, हीम ग्रुप इज स्टोर्ड एज फेरिटिन इन लीवर। लीवर में एक प्रोटीन है उसका नाम है फेरिटिन। ये फेरिटिन क्या स्टोर करेगा, हीम ग्रुप को स्टोर करेगा, मतलब मोस्टली आयन को स्टोर करेगा। तो आपको छोटा छोटा रिंग दिख रहा है आपको डायग्राम में, कैन यू सी देयर आर स्मॉल स्मॉल रिंग, देखो इधर, ये एक पोरफायरिंग रिंग, ये दूसरा पोरफायरिंग रिंग, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ। तो ये पोरफायरिंग क्या हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर सब्सटेंस कॉल्ड एज बिलीवर्डिन। किसमें कन्वर्ट होगा, ग्रीन कलर सब्सटेंस है बिलीवर्डिन, एंड ऑरेंज कलर सब्सटेंस दैट इज सॉरी ग्रीन कलर सब्सटेंस इज बिलीवर्डिन, एंड ऑरेंज कलर का सब्सटेंस है उसको क्या बोलेगा, बिलीरुबिन। ओके, एंड टुगेदर दैट विल गिव द येलो कलर। एंड दिस पिगमेंट मैंने बोला ऑलरेडी, दे आर गोइंग टू फॉर्म बाइल पिगमेंट, एंटर इनटू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेंगे और क्या हो जाएंगे, फीकस के साथ दे आर रिलीज आउटसाइड, ये बाहर फीकस के साथ फेंके जाएंगे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट हीमोग्लोबिन आरबीसी। तो हम लोगों ने क्या किया अभी, हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में डिस्कस किया। ओके